Okay, children. Our next topic is granite. So take out page number 61, granite. So children, look the line granite. Granite is found in different color and is formed when the magma cools slowly under the ground. Magma cools slowly under the ground means what? It is an intrusive rock. Look here, magma cools slowly under the ground. That means it doesn't come on the surface of the earth. It remains in between the cracks of the volcanic eruptions. For more clearance, children, take out the diagram of volcanic eruption. Children, can you see, is there any gaps or any cracks in between the volcanic eruption? Look the arrow one. These are called cracks. These are very huge crack. It is not simple as you are looking in this diagram. These are very huge cracks where granites and many different types of other rocks were formed, like marble, granite, and many more. Okay, these are called cracks. And why these cracks happen? Because of the shaking of the because of the shaking of the earth. Because when volcanic eruption comes, it is not so simple that it comes very smoothly. It shakes the area, and due to this shaking, these cracks happen. So this magma, if you can see these molten rocks, this magma, when try to comes out to the surface of the earth, it fills the gap. What? It fills the gaps. ये क्रैक्स के भीतर जाके फिल हो जाते हैं और वहाँ ठंड होने के बाद वो ग्रेनाइट फॉर्म हो जाता है. सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पत्थर भी वहाँ बनते हैं आफ्टर कूलिंग. It is not that in 1 year or and 2 year only it forms. It takes many years to become a granite. Okay, children. इस तरह से ग्रेनाइट बनता है. And it is a very hard rock. That's why it is used in constructing purpose. Nowadays, people are using it in their homes for decorating purpose also. It is very hard rock compared to marble. Marbles also forms in between the cracks only, but it is not as hard as granite. Okay, I will explain later on also. So now our granite topic is finished. Take out next topic, that is sedimentary rock. Okay children, this is our sedimentary rocks. So I will explain with the help of diagram also. First read the line. Rocks are broken into small pieces all the time. Yes, by strong winds and fast flowing river waters. इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, रॉक्स के पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े पे वो टूटते रहते हैं हर समय. किसके द्वारा? बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर. इन दिस वे दे सेटल डाउन समवेयर ऑन द अर्थ सरफेस. वहाँ कहीं पे उन लोग धरती पर जाके जहाँ वो टूट के गिरते हैं वहाँ वो जमा हो जाते हैं. फिर से ऊपर से फिर से टूट के आता है पत्थर. इस तरह से वो जमा होते रहते हैं, आपस में दबते रहते हैं. वो दब कंप्रेस होते रहते, मतलब चिपकते रहते हैं. और वो कंप्रेस होने के कारण वो कुछ सालों बाद वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है. वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ. रेन वॉश अवे फ्रेगमेंट्स इनटू रिवर्स. अब देख रहे हो, रेन जो तेज बारिश होता है वो वॉश अवे कर देते हैं fragments into river. And these fragments means what? This all broken rocks, small pieces of the rocks, and suspended in the fast flowing river water. When the river reaches the sea, when the river reaches a sea or a lake, it slow down, and the rock fragments and other particles, okay, the rock fragments and other particles which have flowed slowly settle at the bottom of the. That means सिर्फ पत्थर ही नहीं बह के आता है. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पत्थर ही नहीं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे कण ही सिर्फ पानी के साथ नहीं बह के आता, और भी नाना प्रकार की चीज़ें बह के आती है. वो सब भी सेटल डाउन हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से मिलके. फॉर एग्जांपल, कोई मान लो कोई अगर जानवर मरा है, वो भी आ जाता है, उसके ढांचा जो हड्डियाँ हैं. कोई अगर पेड़ है, पेड़ अगर कोई टूट के गिरा हुआ है तो वो भी बह के आता है, वो भी सेटल डाउन हो जाता है अलॉन्ग विद द रॉक्स. दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स. ओके, तो ये सब आके सब पत्थरों के साथ मिल जाते हैं.
and becomes sedimentary after a long period of time. So the upper layer of the sediment put much pressure. That means what? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लोग इस तरह सिंपल इतना आसानी से नहीं बन जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है इन लोगों को और नीचे से भी प्रेशर पड़ता है, कंप्रेस होते रहते हैं, दबते रहते हैं, आपस में दब दब के इन लोग बहुत सख्त हो जाते हैं। दे बिकम्स वेरी टाइट एंड बिकम्स हार्ड। ग्रेजुअली द लेयर, लास्ट लाइन आप देखो, ग्रेजुअली द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स हार्डन एंड फ्यूज टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन आप देख सकते हो, सैंडस्टोन देखो, conglomerate, limestone and shale. These are the sedimentary rocks. So children, आप लोग ज़्यादा समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए पिक्चर को ध्यान से देखिए। ओके चिल्ड्रन, इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, किस तरह से मैं जूम कर रहा हूँ, किस तरह से ये बोल्डर्स देखो, देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको एरो मार्क से भी दिखा रहा हूँ। ये बोल्डर्स, छोटे छोटे जो बोल्डर्स देख रहे हैं ना, कैसे टूट टूट के ऊपर से आ रहे हैं। आते आते क्या होता है इन लोगों का, आते आते क्या होता है इन लोगों का, यहाँ पे जमा हो जाते हैं इन लोग। क्या होते हैं? ये धीरे धीरे करके जमा होने लगते हैं। ये देखिए, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ फॉर्म्स। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है ये जानने वाला, ये देखिए कि नीचे से भी ओवर द टाइम ऑफ द बॉटम लेयर्स टर्न इनटू रॉक, नीचे से भी इसका प्रेशर होता है, ऊपर से भी प्रेशर होता है। तो इस तरह से इस तरह से क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक यहाँ बन जाता है। ये है सेडिमेंट्री रॉक, मैं एरो मार्क से भी दिखा रहा हूँ आपको। ये है सेडिमेंट्री रॉक, जो भीतर में ब्राउन कलर का है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है। जिस फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये ऊपर से जिस टाइप्स, नाना प्रकार के, जैसे जैसे जिस प्रकार के उन लोग ऊपर से टूट टूट के आएंगे और जमा होंगे, उसी प्रकार का यहाँ पे सेडिमेंट्स बनेगा। मान लो बालू ऊपर से आया ना, रेत आया मान लो, तो रेत आएंगे तो रेत जमा होंगे, ऊपर से पत्थर आएंगे तो पत्थर भी जमा होंगे। इस तरह से सेडिमेंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं। आप और एक पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, कितना सारा लेयर है इधर में, ये देख रहे हैं आप। कोई वाइट है ना, कहीं वाइट है, कहीं येलो है, तो कहीं रेड है, कहीं ब्राउन है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइप के वो पत्थर आके वहाँ पे जमा होके है, सेटल डाउन होके है, उसी टाइप से ये कंप्रेस होके आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स वेरी हार्ड and become a sedimentary rocks. And what are the uses of sedimentary rocks? So take out that page number 62. Yes children, limestone is used for making cement and glass. Sandstone is used to construction building. The chalk is used for writing on the blackboard. Is a type of a limestone only. तो जो चौक है वो एक लाइमस्टोन ही है जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। सेल is used for making tiles and roofs. So these are all what? These are all sedimentary rock children. These are all sedimentary example of sedimentary rocks. The Red Fort in Delhi, आपने देखा ही होगा, Red Fort in Delhi is made up of sandstone only. ये बहुत हार्ड होते हैं। सैंडस्टोन मीन्स रेत से बनती है ये, और बहुत हार्ड हो जाता है। सो our next topic comes metamorphic rock. Okay children, our next topic is metamorphic rock. So read the line first. At times existing igneous or sedimentary rocks get pushed deep into the earth. Get pushed means what? धक्का लगाते हैं इन लोग आपस में, igneous rock और नीचे से molten rock जो है आपस में ये प्रेस करते हैं, और वहाँ पे ही बीचों बीच में मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। फर्स्ट रीड द लाइन फर्स्ट। द वेट ऑफ द अर्थ अबव देम। ओके, द वेट ऑफ द अर्थ, लाइन को ध्यान से आप समझिए। द वेट ऑफ द अर्थ अबव देम मतलब मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर जो अर्थ का जो वेट है, एंड द हीट इनसाइड द अर्थ, और जो पृथ्वी के नीचे जो हीट है, तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको, नीचे से हीट का प्रेशर और ऊपर से अर्थ का वेट,
मतलब वेट जो होता है भारी, वो आपस में इतने कंप्रेस कर देते हैं तो उसके बीचों बीच मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। Changes into metamorphic rock. This is very slow process and takes millions of years to form the metamorphic rock. तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक रॉक इतना जल्दी नहीं बनता, बहुत काफ़ी समय लगता है कंपेयर टू इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। और आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा है वो सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक से ही बनता है। ओके, प्लीज माइंड दिस वन। ओके चिल्ड्रन, आप मेटामॉर्फिक रॉक के लिए आप ये ध्यान से ये पिक्चर को देखिए। ऊपर से ये प्रेशर, लुक द एरो, लुक माय एरो, ऊपर से ये प्रेशर दैट इज कॉल्ड अर्थ वेट्स और अर्थ प्रेशर, एंड दिस इज हीट, दिस इज हीट अंडर द ग्राउंड। दैट मीन्स जो मेंटल पे, जो धरती के नीचे जो हीट होता है, धरती के बीचों बीच बहुत हीट होता है, तभी तो वॉल्केनिक इरप्शन होती है। ऊपर हम लोग इतना बैठे हैं, मैंने पहले भी बोला था कि ऊपर हम लोग को हीट पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे लेयर होते हैं। तो धरती के जो नीचे का जो हीट है वो कंप्रेस करते रहता है और ऊपर से अर्थ का वेट कंप्रेस करता रहता है। तो इनके बीचों बीच क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक आप देख रहे हैं बनता है, इनके बीचों बीच ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए बहुत समय लगता है। आप और एक डायग्राम देखिए आप लोग। Look this diagram children. Pressure from surface rock and heat. Pressure from surface rock and from heat is called metamorphic rock. This is a metamorphic rock. ये लेयर जो देख रहे हैं आप, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आप ऊपर पे एक लाइन, दो पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म बाय द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। तो जो रॉक्स ऊपर में है उसका भी एक प्रेशर है, वो भी प्रेस कर रहे हैं, और नीचे से दिस कैन जेंटली इफेक्ट द हार्डनेस और टेक्सचर ऑफ द लेयर ऑफ द पैटर्न ऑफ द रॉक। तो नीचे से भी जो हीट है वो भी कंप्रेस कर रहा है, तो इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और ये क्या है, दिस कैन ग्रेटली इफेक्ट द हार्डनेस, टेक्सचर और लेयर पैटर्न ऑफ द। तो जो प्रेशर होता है, जो नीचे का हीट होता है, वो मेटामॉर्फिक का टेक्सचर जो है और हार्डनेस है उसमें भी इफेक्ट होता है। जिस तरह से प्रेशर पड़ेगा, जिस तरह से नीचे से हीट आएगा, उस तरह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कम हीट, कम प्रेशर, तो उस तरह से अलग मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। तो ये डिपेंड ऑन द हीट एंड द pressure children. So for second part up to metamorphic rock is enough.